بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس توقع پر مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا تھا وہ توقع پوری ہونے لگی تھی۔ ابو عبید بن مسعود ثقفی کے ساتھ جو کمک جا رہی تھی وہ ناکافی تھی۔ تعداد بمشکل 2000 تھی، بعض مورخین نے صرف 1000 لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دور دور تک اعلان کرا دیا گیا کہ محاذ پر کمک کی ضرورت ہے، ورنہ مجاہدین کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ اعلان ان علاقوں میں پہنچا جنہیں مرتدین کے علاقے کہا جاتا تھا، تو وہاں سے رضاکار جوق در جوق تیار ہوئے۔ ان میں ناصرہ بنت جبار کا ایک بیٹا بھی تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ابو عبید 2000 کا لشکر لے کر محاذ کو روانہ ہو گئے۔ یہاں ان کی روانگی کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 2000 رضاکاروں کو مدینہ میں اکٹھا ہوتے ہوئے 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ روانگی کے روز ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا حافظ کہنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت عمر کو عام زبان میں تو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کا یہ رتبہ یوں بولا جاتا تھا: خلیفۃ رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ تھے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو ایک آدمی نے عمر سے یوں کہا: السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ ابو عبید جانے کی اجازت لینے آیا ہے۔ محمد حسین ہیکل نے کتاب عمر فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ واللہ، عمر نے کہا، خلیفۃ رسول اللہ مجھے عیب سا لگتا ہے۔ امیر المؤمنین کتنا اچھا خطاب ہے۔ اس وقت سے خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ 2 روایتیں اور بھی ہیں جن میں ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہے۔ ایک یہ کہ حضرت عمر کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہنے والے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمر کو امیر المؤمنین کہنے والے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے امیر کو لکھا تھا کہ 2 ایسے ذہین اور معزز آدمیوں کو میرے پاس بھیجو جو مجھے عراق کے داخلے اور خارج امور کے متعلق ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ امیر عراق نے عدی بن حاتم طائی اور لبید بن ربیعہ کو بھیجا۔ یہ دونوں مدینہ میں آئے اور اپنا سامان مسجد میں رکھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ ان زعماء نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: امیر المؤمنین سے ملاقات کی اجازت دیں۔ خدا کی قسم، تم دونوں نے ٹھیک کہا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمر امیر ہیں اور ہم مؤمنین۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اسی طرح خطاب کیا: امیر المؤمنین۔ عمر مسکرائے اور یہ خطاب پسند کیا۔ بہرحال حضرت عمر نے اپنی دور خلافت کے اوائل میں ہی امیر المؤمنین کہلانا پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہر خلیفہ امیر المؤمنین کہلایا۔ بات ہو رہی تھی ابو عبید کی روانگی کی۔ ابو عبید مدینہ سے نکلے تو ان کے ساتھ تقریباً 2000 مجاہدین تھے، اور جب وہ مرتدین کے علاقوں میں داخل ہوئے تو جو 89 مسلمان ہو چکے تھے ان کے لشکر کی تعداد 4000 ہو گئی، اور جب ان علاقوں سے نکلے تو یہ تعداد 10000 ہو گئی۔ اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہیں مسلمہ کذاب، طلیحہ اور سجاح جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا۔ آخر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور ایک جنگی قوت بن گئے۔ یہ حضرت عمر کے اس جرأت مندانہ فیصلے کا حاصل تھا کہ جنگی ارتداد میں جنہیں غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ عہد پورا کرنے کو بیتاب تھے کہ فارس یعنی ایران کو فتح کرنا اور زردشت کے پجاریوں کے اس ملک میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے تحریری پیغام بھیجے تھے۔ ان میں ایک پیغام قیصر روم کو بھیجا گیا تھا جو ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ قیصر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس وقت قیصر شام میں تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند ایک شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام تر سامان، خوراک اور پانی لوٹ لیا۔ ان کے اونٹ بھی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارث بن عمیر لے کر گئے تھے، لیکن انہیں ایک عیسائی عرب عمرو بن شرجیل نے موتا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا۔
हारिस बिन उमर के साथ 3 मुहाफिज थे। अमर बिन शर्जील ने उन्हें वापस भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुजाहिदीन के लश्कर को मुता की तरफ रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के सिपहसालार ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि सबसे पहले हमारे एलची हारिस बिन उमर के कातिल अमर बिन शर्जील को कत्ल किया जाए। फिर मुता और गिरदोनवाह के लोगों को बताया जाए कि इस्लाम कबूल कर ले। उन्हें यह भी बताया जाए कि इस्लाम क्या है। इस तरह मुता के मुकाम पर बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई और 3000 मुजाहिदीन ने 1 लाख के लश्कर को शिकस्त देकर हारिस बिन उमर के कत्ल का इंतकाम ले लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फारस पहुंचा, उस वक्त फारस का बादशाह किस्रा परवेज था। परवेज का गुरूर और तकब्बुर मशहूर था। उस वक्त फारस बहुत बड़ी जंगी ताकत थी और फारस की सल्तनत अरब के इलाकों तक फैली हुई थी। पूरा इराक फारस की सल्तनत में शामिल था। किस्रा परवेज के मुतालिक तकरीबन तमाम मुरिखों ने लिखा है कि अरब के जो इलाके सल्तनत फारस में शामिल नहीं थे, परवेज उन्हें भी अपनी अलमदारी में समझता था। उस वक्त किस्रा परवेज अपने दरबार में तख्ते ताऊस पर बैठा था जब उसे इत्तला मिली कि मदीना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची आया है। क्या चाहता है? परवेज ने पूछा। शर्फ बारियाबी किस्रा आजम, दरबार ने जवाब दिया, शायद कोई पैगाम लाया है। मोहम्मद खुद क्यों नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किस्रा परवेज ने रौनक आमीज लहजे में कहा। अपने आप को किसी मुल्क का बादशाह समझता है कि खुद नहीं आया। वो इस खुशफहमी में मुब्तला मालूम होता है कि हमने उसे अल्लाह का रसूल मान लिया है। उसे मालूम नहीं कि मदीना हमारे कदमों में पड़ा है। बुलाओ उस एलची को। तारीख में उस एलची का नाम नहीं मिलता। बहरहाल वो साहबा किराम में से थे। वो किस्रा के दरबार में दाखिल हुए। दरबारी शान शौकत से वो जरा सा भी मरूब न हुए। सलामती हो तुझ पर ऐ शहंशाह फारस, एलची ने कहा, और रहमत हो तुझ पर उस अल्लाह की जो वहदहु ला शरीका लहू है और जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूं। हम तुझे इसलिए माफ करते हैं कि किस्रा के दरबार के आदाब से तू वाकिफ नहीं। किस्रा परवेज ने कहा, जो सर यहां आकर झुकता नहीं वो काट दिया जाता है। ला पैगाम दे, क्या है? एक दरबारी ने आगे बढ़कर एलची से पैगाम लिया और किस्रा परवेज के हाथ में दे दिया। किस्रा ने पैगाम पढ़ा और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। सब सुन लो, किस्रा परवेज ने दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, अरब के इस बद्दू ने हमें लिखा है कि इस्लाम कबूल कर लो। फिर उसने लिखा है इस्लाम क्या है? दरबारियों ने अपने शहंशाह की खुशनुदी के लिए कहकहा लगाया। किस्रा परवेज ने उस पैगाम को फाड़ना शुरू कर दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उसने अपनी हथेली पर रखा और हथेली को अपने मुंह के करीब करके जोर से फूंक मारी। पैगाम के पुर्जे हवा में उड़े और बिखर कर दरबार के फर्श पर गिरे। तू जा सकता है, परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा। हमने पैगाम का जवाब दे दिया है। अगर किस्रा सोचकर जवाब देता तो इसमें उसी की भलाई थी। एलची ने कहा, अल्लाह तेरा निगहबान हो। एलची वहां से निकल आया। एक तेज रफ्तार कासिद को फौरन बुलाओ, किस्रा परवेज ने कहा। उसके आने तक पैगाम लिखवाया। अल्लामा शिबली नोमानी अपनी तसनीफ अल फारूक में लिखते हैं कि कातिब फौरन आगे आया और लिखने बैठ गया। यह पैगाम यमन के हाकिम बाजान को लिखा गया था। यमन फारस की अलमदारी में था। किस्रा ने बाजान को लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा गुलाम है। उसने हमारी तौहीन की है। हमें इस्लाम कबूल करने को कहा है। उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश करो। यह पैगाम कई दिनों की मुसाफत तय करके हाकिम यमन बाजान तक पहुंचा। उसने पढ़ा और गहरी सोच में गुम हो गया। उसके पास उसका एक जनरल बैठा हुआ था। उसने बाजान के हाथ से पैगाम लेकर पढ़ा। किस्रा को यह हुक्म देना चाहिए था कि मदीने पर हमला करो। जनरल ने कहा, मोहम्मद को हम कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? उधर मदीना में एलची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा था कि किस्रा परवेज ने पैगाम के साथ क्या सलूक किया है। उसकी सल्तनत उसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस वक्त किस्रा परवेज को यह पैगाम दिया गया था, उस वक्त उसका एक बेटा शेरुया दरबार में मौजूद था। वो खूबसूरत जवान था। उसकी नजरें उस हसीन और नौजवान लड़की पर बार बार जाती और कुछ देर उसके चेहरे पर जमी रहती थी जो किस्रा के पहलू में तख्ते ताऊस पर बैठी थी। ये लड़की जो हुस्न और शबाब का एक शाहकार थी, परवेज से नजरें चुराकर शेरुया को देख लेती और उसके होंठों पर तबस्सुम आ जाता।
और जब किसरा उसका एक हाथ अपने हाथ में मसलता, या जब लड़की के उरियान शानों पर बिखरे हुए गहरे बादामी रंग के रेशम जैसे नरम मुलायम बालों पर हाथ फेरता, तो लड़की का तबस्सुम यूं मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता जैसे कली खिलकर फूल बन गई हो। उस लड़की का नाम अज़दीबा था और किसरा परवेज उसे प्यार से अज़दी कहता था। उसे दरबार में अपने साथ तख्त पर बिठाता और दरबारियों के साथ बातें करते अज़दीबा के हाथों और बालों से खेलता रहता था। उसने एक आदत यह बना ली थी कि जब किसी को सजा मौत सुनाता तो अज़दीबा की कमर में बाजू डालकर उसे अपने साथ लगा लेता और इस तरह मुस्कुराता जैसे उसने अज़दीबा की फरमाइश पूरी कर दी हो। अज़दीबा यूं खिलकर मुस्कुराती जैसे किसी की मौत का फैसला सुनकर उसे दिली खुशी होती हो। कोई 1 महीना पहले का वाकया है। परवेज का बेटा शेरुया हिरणों के शिकार के लिए गया था। उसके साथ 20-22 आदमी थे, जिनमें कुछ उसके मुहाफिज थे और मुलाजिम थे। 3-4 खुशामती हाकिम और एक सालारी के ओहदे का आदमी था। एक जगह 6-7 हिरन चर चुग रहे थे। शेरुया घोड़े से उतरा, छुप छुप कर आगे गया और एक हिरन पर तीर चलाया। हिरन जिस्म में तीर लेकर दौड़ पड़ा। शेरुया दौड़कर पीछे आया, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को हिरन के पीछे एड़ लगा दी। हिरन जख्मी होने के बावजूद दूर निकल गया। शेरुया का घोड़ा उस तक पहुंच गया। शेरुया ने घोड़ा हिरन पर चढ़ा दिया और उसे गिरा दिया। शेरुया के साथ उसके मुहाफिज थे। उन्होंने मरे हुए हिरन को उठा लिया और शेरुया अपने साथियों की तरफ चल पड़ा। उनके करीब पहुंचा तो उसके साथियों ने दादो तहसीन के नारे लगाने शुरू कर दिए, जैसे उसने हिरन को नहीं बल्कि शेर को उसने अपने हाथों से मार दिया। शेरुया दादो तहसीन के इस खुशामदी हंगामे से बेनियाज एक हसीन और जमील और नौजवान लड़की पर नजरें जमाए हुए था, जो वहां एक आदमी के पास खड़ी थी और उस आदमी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। ये आदमी कोई अजनबी था। उसके साथ 2 और अजनबी आदमी थे। उन तीनों ने आगे आकर और झुककर शेरुया को सलाम किया। कौन है ये? शेरुया ने अपने अफसरों से पूछा। हम मुसाफिर हैं, उन अजनबियों में से एक ने कहा। बगदाद जा रहे हैं, हम वहीं के रहने वाले ताजिर हैं। हम आप ही की रियाया हैं, उनमें से एक और ने कहा। यहां से गुजरे तो उन्होंने बताया कि शहजादा शेरुया शिकार खेलने आए हैं। आपको देखने की ऐसी तमन्ना थी कि हम रुक गए। सुना था शहजादा शेरुया इतना खूबसूरत जवान है कि जो एक बार देख ले वो नजरें किसी और तरफ कर ही नहीं सकता। तीसरे अजनबी ने कहा, और हमने लोगों को यह कहते भी सुना है कि सल्तनत फारस का शहजादा शेरुया को ही होना चाहिए। और ये लड़की तुम में से किसकी बेटी है? शेरुया ने पूछा। तीनों ताजिरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुसुर खुसुर की। शेरुया के साथ फारस की फौज का जो जर्नल आया हुआ था, उसने शेरुया को हल्का सा इशारा किया। शेरुया जर्नल के साथ जरा परे चला गया। ये लड़की इनमें से किसी की भी बेटी नहीं, जर्नल ने शेरुया को बताया। यह सौतेले बाप की जुल्म सितम से भागी हुई लड़की है। हम उनसे पूछ चुके हैं। उस लड़की का बाप मर गया तो मां ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की को आप देखें, क्या इतनी खूबसूरत लड़की आपने पहले कभी देखी है? सौतेले बाप की नीयत इस लड़की पर खराब हो गई। मां इसे बाप से बचाती रही। इत्तेफाक से मां को उन ताजिरों का पता चला कि बगदाद में एक आला हाकिम एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बीवी की तलाश में है। मां ने इन ताजिरों को जानने वाले 2-3 शुरफा की यकीन दहानी और जमानत पर लड़की कुछ रकम के इवज इनके हवाले कर दी। अब ये लड़की को बगदाद ले जा रहे हैं। इनसे पूछो लड़की की क्या कीमत लेते हैं? शेरुया ने कहा, और इन्हें साथ ले चलो, मैं इन्हें कीमत अदा कर दूंगा। ताजिरों ने इतनी ज्यादा कीमत बताई जो शेरुया जैसा शहजादा भी सुनकर हैरान हो गया। मैं चाहूं तो लड़की को बिला कीमत यहीं रख सकता हूं, शेरुया ने कहा, और तुम बगदाद कभी भी नहीं पहुंच सकोगे। होने वाले किस्सा से हमें ऐसी बेइंसाफी की तवक्को नहीं है, एक ताजिर ने कहा। इश्क इंसाफ और बेइंसाफी में तमीज नहीं किया करता, शेरुया ने कहा। मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है। हमने इस लड़की की जो कीमत अदा की है वो तो हमें मिलनी चाहिए, ताजिरों में से एक ने कहा। लड़की ये गुफ्तगू सुन रही थी। वो दौड़कर शेरुया के पास आ गई। मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की ने शेरुया के आगे 2 जानू होकर और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहा, ये लोग मुझे रकासा बनाकर दौलत कमाएंगे और मेरी इस्मत के साथ खेलेंगे। मैं इनकी मिल्कियत में नहीं। मैं किसरा के शहजादे से इंसाफ और तहफ्फुज चाहती हूँ। क्या शहजादा मुझे अपनी पनाह में नहीं ले सकता? क्यों नहीं? शेरुया ने कहा। मैंने तुम्हें अपने दिल में पनाह दे दी है। शेरुया ने लड़की को बाजुओं से पकड़कर उठा लिया और उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर अपने साथ चिपका लिया। तुम तीनों, शेरुया ने लड़की को अपने सामने बिठाकर कहा, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और अपनी मंजिल की राह लो। हुक्म अदूली की सजा जानते हो क्या है?
तीनों ताजिर अपने घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। रात का पहला पहर था। वही जर्नेल और वही आला हकीम जो शेरुया के साथ शिकार पर गए थे, किसरा परवेज के पास बैठे उसकी मिदासराई कर रहे थे। आज हमारा शहजादा शेरुया शिकार खेलने गया था, परवेज ने कहा, और सुना है तुम सब उसके साथ थे। हाँ किसराए आजम, जर्नेल ने कहा, शहजादा नौजवान है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। क्या शिकार किया? एक हिरन किसराए आजम, एक हाकिम ने जवाब दिया। हम आपके साथ शहजादे की शिकार की ही बात करना चाहते हैं, जर्नेल ने कहा। शहजादा शेरुया एक नौजवान लड़की को अपने साथ लाया है। जर्नेल ने तफसील से सुनाया कि यह लड़की उसके हाथ किस तरह लगी थी। फिर कहा, लड़की इतनी खूबसूरत है कि शहजादा उसी का होके रह जाएगा। सल्तनत फारस दुश्मनों में घिरी हुई है। इन हालात में एक शहजादे को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह आजादी से किसी लड़की को महल में ले आए। क्या तुमने उसे रोका नहीं था? किसरा परवेज ने पूछा। बहुत रोका था किसराए आजम, जर्नेल ने कहा, लेकिन हम उसे हुक्म नहीं दे सकते थे, उस पर जबर नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं कि एक शहजादे की यह हरकत किसरा जैसी अजीम शख्सियत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन हम आपका नमक खाते हैं। हमारे जानोमाल अजीम सल्तनत फारस के वकार और तोसी के लिए वक्फ हैं। जर्नल अभी बोल रहा था कि एक आला हकीम ने परवेज को उसके बेटे शेरुया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यही वो जर्नल था और यही वो आला हकीम थे जो शिकार पर शेरुया के साथ थे, और उन्होंने उन 3 ताजिरों से यह लड़की छीनने में शेरुया को हौसला अफजाई की थी और ताजिरों को भगा दिया था। और जब वो लड़की को साथ लिए शिकार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने शेरुया की ऐसी मुदासराई की कि उसे फारस का बादशाह बना दिया था। तख्ते ताउस पर शेरुया ही अच्छा लगता है, और शहजादे के साथ ये मलिका, जरतश्त की कसम, ऐसा खूबसूरत जोड़। रियाया शहजादा शेरुया को देखती है तो सर ताजीम और अकीदत से झुक जाते हैं। शेरुया पर एक तो इतनी हसीन लड़की का नशा तारी था, इस नशे में फारस के आला अफसरों के खुशामदाना अल्फाज इजाफा कर रहे थे। शेरुया का सीना फैलता और सर ऊंचा होता जा रहा था। वो यकीनन अपने आप को फारस का शहंशाह समझने लगा था। उन हाकिमों को उसने उसके बाप के खिलाफ भी भड़काया था, और फिर शेरुया को भी यकीन दिला दिया कि उसके बाप को पता ही नहीं चलने दिया जाएगा कि वो एक लड़की को साथ लाया है। उन्होंने लड़की को एक बड़े अच्छे घर में छुपा लिया और शेरुया से कहा कि लड़की उसे रात को फूला बाग में मिले। रात को यही हाकिम शेरुया के बाप को उसके खिलाफ भड़का रहा था। मैं अभी उसके पास जाता हूं। किसरा परवेज गुस्से से उठा और बोला, लड़की उसके साथ होगी। नहीं अजीम किसरा, एक हाकिम ने कहा, लड़की को उसने अपने साथ नहीं रखा। इस वक्त वो दोनों फुला बाग में बैठे हुए होंगे। उसने परवेज को वो जगह बता दी। किसरा परवेज अकेला ही चल पड़ा। क्या शेरुया ऐसी जुर्रत करेगा कि अभी बाप को कत्ल कर दे? जर्नल ने शहरी हाकिमों से कहा। कत्ल ना किया तो बाप बेटे में दुश्मनी तो पैदा हो जाएगी, एक हाकिम ने कहा, और हम उस दुश्मनी को पक्का कर देंगे, एक और हाकिम ने कहा। लड़की को पक्का रहना चाहिए, जर्नल ने कहा, उसकी जरा सी कोताही राज फाश कर देगी। ये ना बता दे कि हमने उसे छुपाया था। मैंने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है, एक बूढ़े हाकिम ने कहा, और डराया भी बहुत है। अब जो होता है देखते हैं, जर्नल ने कहा। मामला बिगड़ गया तो भुगत लेंगे। किसरा परवेज को जिंदा नहीं रहना चाहिए। महल का वो बाग जन्नत नजीर था। चांदनी उसके हुस्न को दुबाला कर रही थी। वस्त में एक चश्मा था जिसकी शफाफ सतह पर चांदनी के चमकते जर्रे बिखेर रखे थे। फूलों की महक मुर्दा जिस्मों में नई रूह फूंकती थी। हसीन ख्वाब से ज्यादा हसीन बाग में चश्मे के किनारे 2 खूबसूरत इंसान एक दूसरे के साथ यूं चिपक कर बैठे हुए थे जैसे एक ही जिस्म हो। एक शेरुया था और दूसरी वो लड़की थी जिसे शेरुया जंगल से लाया था। लड़की ने अपना नाम अजदीबा बताया था। वो एक दूसरे में गुम हो गए थे। शबाब और इश्क का खुमार उन्हें दुनिया व माफिया से बहुत दूर ले गए थे। मुझे कब तक छुपाए रखोगे? अजदीबा ने सरगोशी की। चंद दिन, शेरुया ने कहा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। क्या शाही खानदान में मुझे कबूल कर लिया जाएगा? अजदीबा ने शेरुया से जरा अलग होकर कहा। मैं रियाया में से हूं, मेरा कोई वारिस भी नहीं है। एक आदमी को तुम्हारा बाप बनाया जाएगा, शेरुया ने कहा। उसे इराक या शाम के किसी कबीले का सरदार जाहिर किया जाएगा। शिकार पर जो अफसर मेरे साथ थे वो ऐसा इंतजाम करेंगे कि तुम उसके साथ महल में आओगी। ये अफसर मेरे बाप से कहेंगे कि
शेरुया की शादी उस लड़की के साथ होनी चाहिए। वो मेरे बाप को कायल करेंगे। वो मेरे बाप को बताएंगे कि लड़की का बाप बहुत अमीर और वसी असर और रसूख वाला आदमी है और अपने इलाके में वो सल्तनत फारस का एक मजबूत सुतून है। उन पर एक साया पड़ा जिसे उन दोनों ने शायद इसलिए नजरअंदाज कर दिया होगा कि बादल का टुकड़ा चांद के आगे आ गया है, लेकिन साया उनके ऊपर से गुजरा नहीं, उनके ऊपर ही रुका रहा। किसरा परवेज की सल्तनत के सुतून बहुत मजबूत है शहजादे। साय में से आवाज आई। शेरुया और अजदीबा ने चौंक कर पीछे देखा। किसरा परवेज उनके सर पर खड़ा था। उसने अजदीबा को बाजू से पकड़कर उठाया। शेरुया अपने बाप और अजदीबा के दरमियान आ गया। मेरे साथ बात करें, शेरुया ने कहा। इसे मैं लाया हूं, ये मुझे नहीं लाई। परवेज ने एक आध कदम पीछे हटकर शेरुया के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या तूने कभी किसी को किसरा के रास्ते में आते देखा है? किसरा परवेज ने कहा। अहमक शहजादे, क्या मैं इसी उम्र में तुझे इस तरह एक लड़की में गुम होते बर्दाश्त कर लूंगा? तुझे दुनिया का ही होश ना रहे। चला जा यहां से, आज से तू महल से बाहर ना निकले। परवेज लड़की को साथ लेकर चला और शेरुया वही खड़ा वो गाल मानता रह गया जिस पर उसके बाप का थप्पड़ पड़ा था। कुछ देर बाद लड़की किसरा परवेज के सोने के कमरे में उसके साथ बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। क्या तुम मेरे इस बेटे को चाहती हो? परवेज ने पूछा। अगर मैंने आपके बेटे के खिलाफ कोई बात कह दी तो आप नाराज हो जाएंगे, अजदीबा ने कहा। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो मैं तुम्हें उस पलंग पर ना बिठाता, परवेज ने कहा। जो कहना है वो कह दो। आपका ये बेटा अहमक है, अजदीबा ने कहा। इसी उम्र में अय्याशी में पड़ गया है। मुझे जबरदस्ती मेरे बाप से छीन लाया है। उसके साथ आपकी उम्र के 3-4 आदमी थे। उन्होंने इसे बहुत रोका, लेकिन उसने सबको डांट कर कहा कि मैं किसरा का बेटा हूं, रियाया की हर लड़की मेरी मिल्कियत है। उसने यह भी कहा था कि जिसने मुझे रोका वो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। तुमने ठीक कहा है लड़की, किसरा परवेज ने कहा। हमारा ये शहजादा अहमक है। क्या तुम हमारे पास रहना पसंद करोगी या अपने माँ बाप के पास जाना चाहोगी? क्या फारस के शहंशाह मुझे अपने पास रखने के काबिल समझते हैं? अजदीबा ने इल्तिजा के लहजे में कहा। तुम जैसे फूल को कौन अपने सीने से लगाकर नहीं रखना चाहेगा? परवेज ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। शहंशाह का दिल इतना कुशादा और मुशफिक है तो ये मेरी खुशनसीबी है, अजदीबा ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन मुझे शहजादे से खौफ आता है, वो मुझे कत्ल करा देगा। हमने उसे महल में नजरबंद कर दिया है, किसरा परवेज ने कहा। वो महल की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता, बाग में घूम फिर सकता है और तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। अजदीबा की वो रात किसरा परवेज के साथ गुजरी। अगले रोज परवेज ने शेरुया को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो महल से बाहर नहीं जा सकता और महल के अंदर वो हरम के कमरों के करीब से भी नहीं गुजर सकता। फिर शेरुया ने बाप को खरी खरी सुना दी। बाप बेटे में खासी बदकलामी हुई। मैं तुम्हारा ये जुर्म माफ नहीं कर सकता, किसरा परवेज ने कहा, और माफ करने वालों में से मैं भी नहीं हूं, शेरुया ने कहा। उसी रोज उन्हीं हाकिमों में से एक जो शेरुया के साथ शिकार खेलने गए थे शेरुया से मिला। एक बाप को अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हाकिम ने शेरुया से कहा। किसरा को चाहिए था कि उस लड़की को महल से निकाल देता, लेकिन लड़की आपसे छीनकर अपने पास रख ली है। मैंने किसरा को अपना बाप समझना छोड़ दिया है, शेरुया ने कहा। हम देख रहे हैं कि किसरा परवेज ऐशो इशरत में गुम होते चले जा रहे हैं, हाकिम ने कहा। उधर मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे हैं, रूमी अलग हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हम सिर्फ आपको देख रहे हैं। सिर्फ आप हैं जो सल्तनत फारस को तबाही से बचा सकते हैं। फिर दूसरे हाकिम बारी बारी शेरुया से मिले और उसके साथ उसके बाप के खिलाफ बातें की। जनरल ने तो उसे बहुत ही ज्यादा भड़काया। सब उसे कहते थे कि उसका बाप सल्तनत को तबाह कर रहा है। शेरुया नौजवान था, इसलिए अजदीबा जैसी हसीन लड़की के मुताबिक उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए। वो अब किसरा परवेज को बाप नहीं बल्कि रकीब कहता था। कुछ दिनों बाद परवेज को कहीं बाहर जाना था। वो चला गया तो एक रात बाग के एक गोशे में शेरुया और अजदीबा की मुलाकात हुई। मुझे अपने बूढ़े और जालिम बाप से आजाद कराओ, अजदीबा रोते हुए बार बार शेरुया से कहती थी। मैं तुम्हारे साथ आई थी, मैं तुम्हारी हूं। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे ना छोड़ा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, शेरुया ने पूरा जम लहजे में कहा। किसरा परवेज मरेगा और वो मेरे हाथों मरेगा। यही अजदीबा किसरा परवेज के साथ होती थी तो उसे शेरुया के खिलाफ मुश्ताल करती रहती थी। उसके नतीजे में परवेज शेरुया को बहाने तलाश कर डांट देता
और उस पर पाबंदियों में इजाफा कर देता था। किसरा परवेज 4-5 दिनों बाद वापस आया। इस अरसे में अजदीबा 2 बार शेरुया से मिली। उसने अपने दिलकश जिस्म और क़यामत खीज़ शबाब की हरारत से और जुबान के जादू से शहजादे को बाप का जानी दुश्मन बना दिया। इस दौरान जर्नेल और 4-5 आला अफसर शेरुया से मिलते रहे और उसके दिमाग पर नक्श कर दिया कि किसरा फारस वही है, उसका बाप सल्तनत को तबाह कर देगा। किसरा परवेज वापस आ गया। 1-2 दिनों बाद वो दरबार में अजदीबा को साथ लिए तख्ते ताउस पर बैठा था। शेरुया भी दरबार में मौजूद था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची पैगाम लेकर आ गया और किसरा परवेज ने पैगाम फाड़कर उसके पुर्जे बिखेर दिए। उसके साथ ही उसने हाकिम यमन को हुक्म भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। शेरुया यह देख देख कर आग बगौला हो रहा था कि परवेज अजदीबा के बालों, गालों और हाथों से खेल रहा था। इधर मुसलमानों का लश्कर इराक में दाखिल हो गया था। सल्तनत फारस की फौज के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी आधी भी नहीं थी। उसके अलावा फारस की फौज नीम ज़िरा कोश थी। उसके बावजूद मुजाहिदीन इस्लाम ने फारसियों को हर मैदान में पसपा किया और उनके हर किले पर इस्लाम का परचम लहराया और फारसी अपनी लाशों और जख्मियों को छोड़कर पसपा होते गए। मुजाहिदीन के सिपह सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके दस्ते रास्त मुसन्ना बिन हारिसा थे। मुजाहिदीन इस्लाम ने दरिया फुरात के किनारे पर बेशतर शहर और कस्बे फतह कर लिए। वो अब मदाइन की तरफ बढ़ रहे थे, जो सल्तनत फारस का दारुल हुकूमत था। मदाइन महल्लात का शहर था। यह फारस के बादशाहों की गद्दी थी। ये एक हंसता मुस्कुराता बारौनक शहर था, लेकिन इस शहर की मुस्कुराहटें गायब हो गई और सारे शहर पर खौफ व हिरास तारी हो गया। मुसलमानों के रास्ते में आने वाले शहरों से भागे हुए लोग मदाइन पहुंच रहे थे। उनमें जरदश्त के पुजारी और ईसाई ताजिर भी थे। उनके पास मौल दौलत था, जिसे मुसलमानों से बचाने की खातिर वो भागते और पनाहें ढूंढते फिर रहे थे। किलों और मैदान जंग से भागे हुए अफसर, ओहदेदार और सिपाही भी मदाइन पहुंच रहे थे। शहरी भी खासी तादाद में पहुंच गए थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की दहशत फैला दी थी। एक रोज फारस के उमरा और वुज़रा और कई ज़ुअमा इकट्ठे हुए। क्या तुम सब सल्तनत फारस की ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हो? उनमें सबसे ज्यादा मुअम्मर अमीर ने कहा। जिल्लत और रुसवाई नहीं, तबाही कही। एक और अमीर बोला, आधे से ज्यादा इराक पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हमारी वो फौज जिसने रूम के हिरक्ल को शिकस्त दी थी, अब अरब के पसमानदा बददुओं के आगे पसपा होती और हथियार डालती चली आ रही है। जरदश्त की लानत हो हम पर कि हम मदाइन भी मुसलमानों के हवाले करके चलते बने। अब आप बोले मोहतरम बुजुर्ग। मैंने जो कहना था वो तुमसे कह दिया है, मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा। तुम सब जानते हो कि इस तबाही की वजह क्या है। खाना जंगी। ये भी एक किस्म की खाना जंगी है। एक ग्रुप एक आदमी को तख्त पर बिठाता है तो दूसरा ग्रुप उसे कत्ल करके अपने आदमी को तख्त पर बिठा देता है। ये तमाम बादशाह कत्ल होने के ही काबिल थे। अगर हम ये खूनी खेल तमाशाइयों की तरह देखते रहे तो सल्तनत फारस का नामो निशान मिट जाएगा। खुद हम लोग जो यहाँ बैठे हैं एक दूसरे के हक में मुखलिस नहीं, हम अंदर से एक दूसरे के खिलाफ हैं। जरा सोचो कि सल्तनत फारस ही ना रही तो क्या मुसलमान या रूमी तुम्हें ये हैसियतें और रुतबे देंगे जो हमें हासिल हैं? हम गुलाम होंगे, हमारी बेटियां लौंडियां बना ली जाएंगी और तुम जानते हो और क्या कुछ हो जाएगा। वो हम जानते हैं। एक ने कहा, ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास बातों का वक्त नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि मुसलमानों को दौलत, शराब और इंतहाई हसीन लड़कियों के जरिए कमजोर कर दिया जाए। मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा, यहूदी हमारे साथ है, ईसाई हमारे साथ है। खुद फारस में एक से बढ़कर एक हसीन लड़की मौजूद है। दौलत की हमारे पास कमी नहीं, हम ये हरबे आजमा भी चुके हैं, लेकिन मुसलमान इस जाल में आने वाली कौम नहीं। यहूदी लड़कियों को मुसलमान जाहिर करके मुसलमान कबीलों के बाद सरदारों की बीवियां बनाया गया था। उन लड़कियों में से 3 तो मुसलमानों के अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और बाकी कत्ल हो गई क्योंकि उनकी असलियत जाहिर हो गई थी। वो कैसे? वो इस तरह के उन्हें यह काम दिया गया था कि मुसलमान औरतों में फारस की फौज की दहशत फैलाए। मुअम्मर दानिश्वर ने कहा, और अपने खाविंदों को भी डराती रहें कि फारस की फौज में हाथी हैं जो दुश्मन की फौज को कुचल देते हैं। उन लड़कियों को बताया गया था कि अपने खाविंदों के साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करें कि वो पागल हो जाएं, जैसे मुसलमान सिर्फ जज्बे जिहाद से पागल हुए जा रहे हैं। इस तरह उन लड़कियों की असलियत खो गई और वो कत्ल हो गई। बाकी रही दौलत, किले जो मुसलमानों ने फतह कर लिए हैं सोने चांदी से भरे हुए हैं। उनके सिपह सालारों ने
ये माल गनीमत अपने लश्कर में तकसीम करके बाकी अपने खलीफा को भेज दिया। मुझे तवक्को थी कि ये सालार इतना ज्यादा माल दौलत देकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर देंगे और मफतूहा इलाकों में अपनी बादशाही कायम कर लेंगे, लेकिन ये लोग अपने खलीफा और अपने मरकज को धोखा नहीं देते। उनकी फतेह की वजह भी यही है, एक वजीर ने कहा। सबसे बड़ी वजह एक और है, मोहम्मद बुजुर्ग ने कहा। इन मुसलमानों में खुशामदी की लानत नहीं है। मैंने मालूम करवाया है कि कोई आदमी अपने खलीफा की, अपने अमीर और अपने सालार की खुशामद नहीं करता। उनके यहाँ शाही दरबार नाम की कोई चीज नहीं। खलीफा मस्जिद में बैठकर हुक्म जारी करता है और जिस किसी को कोई एतराज हो तो वो बेधड़क एतराज करता है। फारिस के शहंशाही को खुशामदी दीमक की तरह खा रहे हैं। तख्त पर कत्ल व गारत खुशामदियों ने कराई थी। खुशामदी को अपना मफाद अजीज होता है और खुशामद ऐसा मीठा जहर है जो पत्थर को भी पिघला देता है। अब मैं असल बात पर आता हूँ। अहद करूं कि हम में कोई भी खुशामदी नहीं करेगा और न किसी से खुशामद की तवक्को रखेगा। खुशामद को जुर्म करार दिया जाएगा। अब हमारा बादशाह उर्दुशेर होगा। उर्दुशेर में यह खूबी है कि वो मर्द मैदान है और जंग की क़ियादत का माहिर है। हमें इस वक्त बादशाह की नहीं बल्कि लड़ने और लड़ाने वाले कायद की जरूरत है। अगर किसी को इतराज है तो बोलो। सबने तायद की और उर्दुशेर को बुलाया गया। उर्दुशेर नौशेरवा आदिल का पोता था। उसे इन उमरा ने ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वो सल्तनत फारस को संभालेगा। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, उर्दुशेर ने कहा, तो क्या मैं इसे कबूल नहीं करूंगा? हमारी फौज की शिकस्त और पसपाई की वजह आपस की दुश्मनी और खून खराबा है। उसकी जिम्मेदारी आप लें। मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां मुसलमान फतेह पर फतेह करते आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद को मुसलमानों ने आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता बना रखा है। मैं उसे जिंदा पकड़ लाऊंगा। और वो महाज पर चला गया।